Today, in the subject of the manufacturing technology, we'll study about the unit third, and the syllabus of the unit third is the assembly practices, manufacturing and assembly, process planning, selective assembly, material handling, and devices. We have already studied material handling and devices. Today, we study about the manufacturing and assembly. In the case of the manufacturing and assembly, the definition is given here. Definition of the design for manufacturing and assembly. Design for manufacture and assembly. This is the combination of the design for manufacture, DFM, and the design for assembly, DFA. And this is the combination of the design for manufacture and design for assembly. What is the design for manufacture and assembly? The concept of the design for manufacture is not new. It dates back as early as 1788, when the Louis Blanc, a Frenchman, devised the concept of the interchangeable parts in the manufacture of the muskets, with previously individually handmade. The interchangeable part, the design of the concept of the interchangeable part, which is given for the assembly of the any of the component. Design for manufacture is the practice of the designing products, keeping manufacturing in the mind, that how the manufacturing can be become easier. Design for manufacture means the design for each for manufacture, for the collection of the part that will form the product for after assembly. This is the each for manufacture, so that the every component of the any of the assembly can be manufactured easily. This is the each for manufacture. This is the each for manufacture. Similarly, design for assembly is called for the design for assembly. Design for assembly is the practice of the designing the product with assembly in the mind. Design for assembly means the design of the product for each of the assembly. You make a product such a way that it is easier to assemble. It is easier to assemble. You make a product such a way it is easier to manufacture. This is the known as the design for manufacture and assembly. So the design for manufacture and assembly is the combination of the design for manufacture and design for assembly, as shown in the figure. This is known as the manufacture and assembly. For the each of the manufacture and assembly. Design for manufacture and assembly used for the three main activity. These are the three main activity where the design for manufacture and assembly is used as the basis for concurrent engineering study to provide guidance to the design team in the simplifying the product structure, to reduce the manufacturing and assembly cost, and to quantify the improvement, as a benchmarking tool to study competitors' product and quantify manufacturing and assembly difficulty. You have to identify and quantify what are the manufacturing difficulty in any of the product, and you have to be remove them. You have to identify what are the assembly difficulty in the making a product, and you have to be remove them. This is the main activity of the DFMA. As the basis for the concurrent industry, it is a guidance to design team in simplifying the product structure. You have to simplify the product structure to reduce the manufacturing and assembly cost. You have to reduce the manufacturing cost, you have to reduce the assembly cost, and to quantify the improvement. This is the design for manufacturing and assembly. As A should cost to help control cost, to help the negotiate the supplier's contract, because cost will help in the negotiate the supplier's contract. Hence, to reduce the manufacturing cost, to reduce the assembly cost, then the quantify the improvements are there. These are the design for manufacturing and assembly, right? And this is the
Here the figure is given, the time is the nonlinear cost is there, cost incurred is used here, and the percentage of the product cost committed have been given here. Market development is given here. Conceptual design is given here. Product design is given here. Cost committed manufacturing is given here. Product use is given here. What is the cost incurred have been plotted, and this is the reduced by the manufacturing and assembly. Product cost commitment during the phase of the design process. डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चर एंड असेंबली, इसमें एक ही आपका प्रिंसिपल है कि आप इस तरह मैन्युफैक्चर करें कि आपका कॉस्ट जो है आपको कम हो जाए. आप इस तरह असेंबली लाइन को बनाएं, असेंबली को करें कि आपका कॉस्ट जो है आपको मिनिमम हो जाए. दिस इज द डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चर एंड असेंबली. Decision made in the design process cost very little in terms of the overall product cost, but have a major effect on the cost of the product. You cannot compensate in the manufacturing for the defect introduced in the design phase. The design process should be conducted so as to develop quality, cost competitive products in the shortest time possible. Original design, this is the innovation is there. More than macro example is the microprocessor is there. Here that the different types of the designs are mentioned here. कितने तरह के डिजाइन होते हैं वो आपको यहाँ पर आपको बताया गया है. How many types of the designs are there? Original design, innovation होगा. This is must be the innovated through the idea. Adaptive design, novel application. जो एडेप्टिव डिजाइन है, एडप्ट किया गया है दूसरे डिजाइन से, वो आपको एप्लीकेशंस है, वो आपको इनोवेशंस नई है. रीडिजाइन का मतलब है विदाउट एनी चेंज इन द कॉन्सेप्ट ऑफ द ओरिजिनल डिजाइन, रीडिजाइन किया गया है. रीडिजाइन किया गया है आपको बिना कॉन्सेप्ट को आपको चेंज किए गए. वेरिएंट डिजाइन का मतलब है चेंजिंग सम ऑफ द डिजाइन पैरामीटर का मतलब है वेरिएंट डिजाइन. वेरिएंट डिजाइन का मतलब है चेंजिंग सम ऑफ द डिजाइन पैरामीटर्स, तो आपको उसको वेरिएंट्स डिजाइन कहते हैं. सिलेक्शन डिजाइन का मतलब है सिलेक्टिंग द कंपोनेंट्स विद द नीडेड परफॉर्मेंस, क्वालिटी एंड कॉस्ट फ्रॉम द कैटलॉग्स ऑफ द पोटेंशियल वेंडर्स. इंडस्ट्रियल डिजाइन, अपील ऑफ द प्रोडक्ट टू द ह्यूमन सेंस. इंडस्ट्रियल डिजाइन का मतलब है अपील टू द प्रोडक्ट फॉर द ह्यूमन सेंस. दिए आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिजाइंस के बारे में आपको यहाँ पर आपको बताया गया है कि कौन सा डिजाइन किस तरह का होगा. ओरिजिनल डिजाइन, एडेप्टिव डिजाइन, रीडिजाइन, वेरिएंट डिजाइन, सिलेक्शन डिजाइन एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन. ये आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिजाइंस के बारे में आपको बताया गया है. यहाँ पर डिफरेंट स्टेप्स इन द डिजाइन प्रोसेस. What are the different steps in the case of the design process have been mentioned here. Steps for applying design for manufacture and assembly during the product design. The following steps are followed when design for manufacture and assembly is used in the design process. Design for assembly analysis leading to the simplification of the product structure. Product structure को simplify करना है. अगर कोई प्रोडक्ट है उसमें 10 प्रोडक्ट 10 आइटम उसमें आपको असेंबल हो रहा है, तो 10 को आपको सिंप्लीफाई करना है. आपको प्रोडक्ट असेंबल को सिंप्लीफाई करना है जिससे असेंबली आसान हो जाए, असेंबली में कॉस्ट आपको रिड्यूस हो जाए. ईयरली कॉस्ट एस्टिमेशन ऑफ द पार्ट्स फॉर बोथ ओरिजिनल डिजाइन एंड द मॉडिफाइड डिजाइन. जो कॉस्ट ऑफ द एस्टिमेशन ऑफ द पार्ट है आपको ओरिजिनल डिजाइन के लिए और मॉडिफाइड डिजाइन के लिए लागू होगा. सिलेक्टिंग बेस्ट मटेरियल एंड प्रोसेस टू बी यूज्ड. आपको बेस्ट मटेरियल और प्रोसेस जो है आपको सिलेक्ट करना. आफ्टर फाइनल सिलेक्शन ऑफ मटेरियल एंड प्रोसेस कैरी आउट थ्रू एनालिसिस ऑफ द डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चर. आफ्टर फाइनल सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल एंड प्रोसेस, जो मटेरियल सिलेक्शन का आपको प्रोसेस है वो डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चर का है. फिगर डिपिक्ट्स द फ्लो डायग्राम ऑफ वेरियस स्टेप्स अंडरटेकन इन द डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चर एंड असेंबली स्टडिंग द DFMA सॉफ्टवेयर. आपको फिगर आपको दिखाया गया है, ये आपको कॉमन स्टेप्स टेकन इन द डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चर एंड असेंबली स्टेज. यहां पर आपको मैन्युफैक्चर और असेंबली का आपको बताया गया है. Design concept, design for assembly.
यहाँ पर डिजाइन फॉर असेंबली के लिए आपको दिया हुआ है डिजाइन कंसेप्ट, एंड यहाँ पर आपको सजेशंस फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी देयर। आप प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई कीजिए, हाउ टू सिंप्लीफाई द प्रोडक्ट so that the assembly can become easier, and then it will give the feedback to the design। आप प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई कीजिए जिससे कि असेंबली में आपको आसान हो जाए। सिलेक्शन ऑफ मटेरियल एंड प्रोसेस एंड ईयरली फॉर द डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चर कॉस्ट एस्टिमेट। आप सिलेक्शन ऑफ मटेरियल आप उस तरह कीजिए, सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस आप उस तरह कीजिए जो आपको डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चर में आपको हेल्प करे। सजेशन फॉर मोर इकोनॉमिक मटेरियल एंड द प्रोसेस, आपको ऐसा मटेरियल सेलेक्ट कीजिए जो कि आपको लेस कॉस्टली पड़े, आपको कॉस्ट कम कर दे, वैल्यू इंजीनियरिंग लागू कर दे। आपको इस तरह का मटेरियल आपको सिलेक्ट करना है। दूसरा, प्रोसेस आपको इस तरह का सिलेक्ट करना है जो कॉस्ट को मिनिमाइज कर दे। आपको उसी से कंपटीटिव एज है, आपको स्टैंडर्डाइजेशन आपको करना जरूरी है। बहुत सारी कंपनियां, आपको यूनिलीवर कंपनियां ये आपको अडॉप्ट करती है जिससे कि जो है उसके प्रोडक्ट मार्केट में लोअर कॉस्ट में अवेलेबल रहते हैं और कंपटीटिव रहते हैं, और उसका जो है फिर आपको कोई भी उसको जो है उसका प्रोडक्ट जो है मार्केट से हटा नहीं पाता है। तो ये प्रोसेस आपको जो डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चर एंड असेंबली का बताया गया है, ये बड़े बड़े कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां ये आपको अडॉप्ट करती है कि आपको प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई कीजिए, प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई कीजिए जिससे कि असेंबली में आपको आसानी हो जाए, और उसको डिजाइन में इंप्लीमेंट कीजिए। आप बेटर मटेरियल आप सेलेक्ट कीजिए, लो कॉस्ट मटेरियल आप सेलेक्ट कीजिए जिससे कि आपको इकोनॉमिक पड़े और प्रोसेस भी आपको इकोनॉमिक पड़े, और उसको जो है आपको फीडबैक के रूप में आपको डिजाइन कॉन्सेप्ट में आप इंक्लूड कीजिए। बेस्ट डिजाइन कॉन्सेप्ट, दिस इज द नाउन एज द बेस्ट डिजाइन कॉन्सेप्ट। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं ये आपको प्रिंसिपल अप्लाई करती है, एंड देन हिज प्रोडक्ट इज ग्रोन थ्रू आउट द वर्ल्ड। डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चर, डिटेल डिजाइन फॉर मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चर में आप डिटेल डिजाइन कीजिए, हर एक आइटम का डिटेल डिजाइन होना चाहिए फॉर मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जिससे कि कॉस्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग का मिनिमम आपको लगे। ये आपको डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चर है। उसके बाद आप प्रोटोटाइप बनाइए और उसके बाद आप प्रोडक्शन कीजिए। ये जो आपको स्क्रीन पे आपको ये दिखाया जा रहा है कॉमन स्टेप्स टेकन इन द डीएफए, ये आपको मल्टीनेशनल कंपनियां, फोर्ड कंपनी वो भी आपको इंप्लीमेंट करती है, टोयोटा भी आपको इंप्लीमेंट करती है, जिससे कि जो है उसका आइटम प्रोडक्ट कंपटीटिव मार्केट में थ्रू आउट द वर्ल्ड आपको जाए। दिस इज द कॉमन स्टेप्स इन द डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चर एंड असेंबली। डिजाइन कॉन्सेप्ट, डिजाइन फॉर असेंबली, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल and processes, and yearly design for manufacture cost estimate, based design concept for the design for production, prototype suggestion for the economic material, and process suggestion for the simplification of the product structure। जो simplification of the product structure है उसको आप जो है उसको आप लागू कीजिए। सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट स्ट्रक्चर आप उसको लागू कीजिए। एडवांटेज ऑफ अप्लाइंग डीएफएमए ड्यूरिंग द प्रोडक्ट डिजाइन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अप्लाइंग दिस इज इन द प्रोडक्ट डिजाइन। ये आपको एडवांटेज आपको यहां पर आपको दिया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली का क्या एडवांटेज है। टुडे प्रोडक्ट्स आर टेंडिंग टू बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, प्रोडक्ट ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर इंक्रीजिंग, number of the products are increasing, they are becoming more complex, made required in increasingly larger number। ये आपको made required in increasingly larger number intended to satisfy a wide variation in the user population। आपको satisfy करता है wide variation in the user population, required to compete aggressively with the similar product, required to compete aggressively with the similar product। similar products मार्केट में बहुत ज्यादा है। कोई भी आइटम का ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम का ले लीजिए, कंज्यूमर गुड्स का ले लीजिए, आपको सिमिलर प्रोडक्ट्स मार्केट में बहुत ज्यादा है, इसीलिए कंपटीशन आपको बहुत ज्यादा है। आपको डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चर एंड असेंबली आपको लगाने के बाद आपको कॉस्ट आपको मिनिमम हो जाएगा, जिससे कि आप जो है कंपीट कर पाएंगे। रिक्वायर्ड टू कंसिस्टेंट हाई क्वालिटी,
हाई क्वालिटी के लिए और आपको जाना पड़ेगा, आपका प्रोडक्ट को जो है आपको हमेशा ये हाई क्वालिटी का बनाएगा। ये हाँ बताइए सर। अटेंडेंस लगा दो, मेरा नेट नहीं चल रहा है ढंग से। अच्छा ठीक है, मैं अटेंडेंस लगा देता हूं। हिमांशु पुंडीर रोल नंबर 18। हिमांशु पुंडीर जी रोल नंबर 18। प्रेजेंट सर। शेखर जी 41। 39 रौनक जी। अभिषेक दुबे जी रोल नंबर 2। सर। आकाश पवार जी रोल नंबर 3। आशीष जी रोल नंबर 7। चंदन शाह जी रोल नंबर 8। हिमांशु पुंडीर जी रोल नंबर 18। जी सर। हृदय जी रोल नंबर 19। जितेंद्र राणा जी रोल नंबर 23। पवन नेगी जी रोल नंबर 30। प्रिंस सरोहा जी रोल नंबर 31। रामदत्त भट्ट जी रोल नंबर 38। ऋषभ नायक जी रोल नंबर 54। जैनेश चौहान जी रोल नंबर 22। कार्तिक पराशर जी। फिर से मैं प्रेजेंट का अटेंडेंस बोल देता हूं। कार्तिक पराशर जी प्रेजेंट। जैनेश चौहान जी 22 प्रेजेंट। ऋषभ नायक जी 54 प्रेजेंट। रामदत्त भट्ट जी 38 प्रेजेंट। प्रिंस सरोहा जी 31 प्रेजेंट। पवन नेगी जी रोल नंबर 30 प्रेजेंट। जितेंद्र राणा जी प्रेजेंट और पवन नेगी जी रोल नंबर 30 प्रेजेंट। हृदय जी रोल नंबर 90 प्रेजेंट। हिमांशु पुंडूर जी रोल नंबर 18 प्रेजेंट। चंदन शाह जी रोल नंबर 8 प्रेजेंट। आशीष जी रोल नंबर 7 प्रेजेंट। आकाश पवार जी रोल नंबर 3 प्रेजेंट। अभिषेक दुबे जी रोल नंबर 2 प्रेजेंट। रौनक कुमार जी 39 प्रेजेंट एंड 41 शेखर जी, ये आपको प्रेजेंट है। ये सारे आपको प्रेजेंट है। तो ये एडवांटेजेस हम डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चर एंड असेंबली के लिए आपको डिस्कस कर रहे थे। मैन्युफैक्चरिंग इस तरह किया जाए, उसके प्रोडक्ट का आपको मटेरियल सिलेक्शन इस तरह किया जाए कि कॉस्ट उसका मिनिमम हो जाए। जो प्रोडक्ट आइटम का कॉस्ट है वो आपको मिनिमम हो जाए। असेंबली में इस तरह असेंबली किया जाए कि जितने भी आइटम उसमें असेंबली के लिए आपको जो है जुटाए गए हैं, आपका कॉस्ट जो है आपको कम हो जाए। ईज फॉर असेंबली, ईज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, यही आपको मेन कॉन्सेप्ट है आपको मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली का। तो यहां पर आपको बताया गया है रिक्वायर्ड टू कंसिस्टेंट विद द हाई क्वालिटी। क्वालिटी पे आपको हमेशा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्वालिटी को आपको हमेशा इंक्रीज करना पड़ेगा और कॉस्ट को आपको मिनिमाइज करना पड़ेगा, है ना। मेड रिक्वायर्ड एंड इंक्रीज लार्ज नंबर थ्रू डीएफएमए इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस कंपेटिटिवली प्राइस्ड। आपको कंपेटिटिवली प्राइस्ड आपको बना पड़ेगा। हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट एट ए मिनिमम कॉस्ट आपको देना पड़ेगा। हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट एट ए मिनिमम कॉस्ट आपको देना पड़ेगा किसी आइटम का, तभी वो वर्ल्ड में आपको सरवाइव कर पाएगा। हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट at a minimum cost. The advantage of applying DFMA during the product design are as follows. These are the advantages of the design. DFMA not only reduces the manufacturing cost of the product, but it helps to reduce the time to market and quality of the product. ये आपको टाइम मार्केट में एंट्री के लिए, डिलीवरी टाइम के लिए, उसमें भी आपको हेल्प करता है। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट उसमें भी आपको हेल्प करता है। ये आपको मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली का आपको फायदा है। दूसरा, डीएफएमए प्रोवाइड्स ए सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉर एनालाइजिंग ए प्रपोज्ड डिजाइन। कोई भी प्रपोज्ड डिजाइन है उसको सिस्टमैटिक प्रोसीजर आपको देता है। ये आपका उसका एडवांटेज है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द
व्यू ऑफ द असेंबली एंड द मैन्युफैक्चर। असेंबली के व्यू से आपको सिस्टमैटिक प्रोसीजर क्या होगा वो आपको देता है। दूसरा, मैन्युफैक्चर के व्यू से सिस्टमैटिक प्रोसीजर क्या होगा वो आपको देता है। Hence, any reduction in the number of the part reduces the cost as well as inventory. आपको कौन सा पार्ट को रिड्यूस करना है, कौन सा पार्ट को खत्म करना है, आपको वो यहां पर आपको डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चर एंड असेंबली में आपको सलाह देता है। दूसरा, इन्वेंट्री के लिए अगर आइटम का रिड्यूस हो जाता है तो इन्वेंट्री में भी आपको मिनिमाइज करता है। DFMA टूल्स इनकरेज द डायलॉग बिटवीन द डिजाइनर एंड द मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर। आपको डिजाइनर और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर के बीच में आपको डायलॉग करता है ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ द डिजाइन। अर्ली स्टेज ऑफ द डिजाइन में आपको डायलॉग करता है। हेंस जनरल डिजाइन रूल्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी, ये आपको जनरल डिजाइन रूल्स है। प्रोडक्ट लाइफ आपको बढ़ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्वांटिटी आपको बढ़ जाएगा, परमिसिबल टूलिंग एक्सपेंडिचर लेवल ये इस पे आपको इफेक्ट करेगा, पॉसिबल पार्ट शेप कैटेगरी एंड कॉम्प्लेक्सिटी लेवल इस पे आपको कम करेगा। सर्विस और इन्वायरमेंट। हाँ बताइए। अटेंडेंस ले ली आपने? अटेंडेंस ले लिए? कोई रह रहे हैं आप? हाँ, क्या नाम है आपका? नहीं सर, आकाश पवार। आकाश पवार जी का अटेंडेंस हो गया। ओके सर, थैंक यू। आकाश पवार जी का अटेंडेंस हो गया। अपीयरेंस फैक्टर को बढ़ाएगा। प्रोडक्ट का जो अपीयरेंस है वो आपको अच्छा होना चाहिए, उसको बढ़ाएगा। एक्यूरेसी फैक्टर को आपको बढ़ाएगा, ये आपको जनरल डिजाइन रूल है। सर्विस रिक्वायरमेंट को वो आपको बढ़ाएगा, इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट को आपको बढ़ाएगा, कंप्लेक्सिटी लेवल को आपको कम करेगा। ये आपको मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली का आपको फायदा है। दूसरा, मटेरियल्स में आपको काफी हेल्प करेगा। ऐसा मटेरियल सेलेक्ट कीजिए जो कि आपको कम कॉस्ट का पड़ता है और वो आपको कॉस्ट को जो है रिड्यूस करेगा। An incorrectly chosen material can lead not only to the failure of the part but also to the excessive life cycle cost, है ना। तो मटेरियल का सिलेक्शन आपका जो है सही होना चाहिए किसी भी पार्ट को करने के लिए। Selecting the best material for a part involves more than choosing both the material that has the property to provide the necessary performance in serving and processing method used to create the finished part. A poorly chosen material can add to the manufacturing cost. आपको अगर मटेरियल आपको ठीक नहीं है तो आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे आपको फर्क पड़ेगा। Properties of the material can be enhanced or diminished by processing and that may affect the service performance of the part, है ना। Property of the material can be enhanced, आपको वहां पर आप बढ़ा सकते हैं। Faced with the large number of combination of material and process from which to choose, the material selection task can only be done effectively by applying simplification and the systemization. As design proceeds from concept to design to configuration and the parametric design and to the detailed design, the material and process selection becomes more detailed. Figure compares the design methods and tool used at each design stage with material and the process selection, है ना। Material selection आपका जो है आपका मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपको किसी भी सिलेक्शन में। At the concept level of the design, essentially all materials and process considered in a broad detail. सारे मटेरियल को ब्रॉड डिटेल में कंसीडर किया जाता है, सारे प्रोसेसेस को ब्रॉड डिटेल में आपको कंसीडर किया जाता है और उसको देखा जाता है कि कौन सा मटेरियल सुटेबल है, कौन सा प्रोसेस आपको सुटेबल है। द मटेरियल सिलेक्शन मेथोडोलॉजी एंड चार्ट्स डेवलप्ड बाय एसपे आर हाईली अप्रोप्रिएट एट दिस स्टेज. The task is to determine whether each design concept will be made from the metal, plastics, ceramics, composite or wood and to narrow it to group of the material within that material family. The required precision of the property data is the rather low. Note that if an innovative choice of the material is to be made, it must be done at the conceptual design phase because later in the design process, too many decisions have been made to allow for a radical change.
The emphasis at the important phase of the design on determining the shape and size of the part using the engineering analysis. The designer will have decided on a class of material and processes. डिजाइनर को ये पूरा डिसीजन है कि आप कौन सा क्लास ऑफ द मटेरियल और कौन सा प्रोसेस वो आपको चेक करे, सच एज ए रेंज ऑफ द एल्युमिनियम एलॉय, wrought and the cast iron. The material property must be known to the greater level of the precision. आपका मटेरियल कौन सा मटेरियल प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हैं, ग्रेटर लेवल ऑफ प्रिसीजन तक जरूर जाना चाहिए. At the parametric design step, the alternative will have to be narrowed to a single material and only a few manufacturing process. Design for manufacture and assembly लगाने के बाद आपको जो भी मटेरियल है डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को आप चेक कीजिए एंड दैट नैरो टू ए सिंगल मटेरियल, एक सिंगल मटेरियल के अल्टरनेटिव पे पहुंचिए एंड ओनली ए फ्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और कुछ ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे आप उसको कंसंट्रेट कीजिए. मींस बॉडी को, प्रोडक्ट को आप स्टैंडर्डाइज कीजिए, मटेरियल को स्टैंडर्डाइज कीजिए, प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज कीजिए. जो आपको यूनिलीवर कंपनी आपको कर रही है, फोर्ड कंपनी आपको कर रही है, आप मटेरियल को स्टैंडर्डाइज कीजिए हर एक आइटम के लिए. दूसरा, प्रोसेस को आप स्टैंडर्डाइज कीजिए कि ये किस प्रोसेस से बनेगा, स्टैंडर्डाइज कीजिए, प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज कीजिए. जब आपने मटेरियल को स्टैंडर्डाइज कर दिया, प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज कर दिया, तो आपका कॉस्ट जो है खुद ही आपको मिनिमम हो जाएगा. Hence, here the emphasis will be on deciding the critical tolerances, optimizing for the robust design, and selecting the best manufacturing process using the quality engineering and the cost modeling methodology. क्वालिटी इंजीनियरिंग और कॉस्ट मॉडलिंग मेथोडोलॉजी से आप बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को आप सेलेक्ट कीजिए डिपेंडिंग ऑन द इंपोर्टेंस ऑफ द पार्ट. मटेरियल प्रॉपर्टी मे बी नीड टू नो हायर लेवल ऑफ द प्रिसीजन. वर्ल्ड में जो सबसे बेस्ट मटेरियल है उसको आप सेलेक्ट कीजिए. वर्ल्ड में जो बेस्ट मेथोडोलॉजी है आप उसको सेलेक्ट कीजिए. बड़ी बड़ी चाइनीज कंपनियां वही कर रही है कि आपको बेस्ट मेथोडोलॉजी को सिलेक्ट करके, बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग को सिलेक्ट करके आपको आइटम का कॉस्ट आपको रिड्यूस कर दे रहा है, जो कि आपको इंडियन कंपनी उसके सामने आपको फेल हो जाती है और इंडियन कंपनी का कॉस्ट बढ़ जाता है और चाइनीज कंपनी का कॉस्ट आपको डाउन हो जाता है. तो यही कारण है कि आपको वर्ल्ड में जो बेस्ट मेथोडोलॉजी होगा उसको आपको सिलेक्ट करना है, जो बेस्ट मटेरियल होगा आपको उसको सिलेक्ट करना है. This may require the development of the detailed database based on the extensive material testing program. Material and process selection is a progressive process of knowing from a large universe of the possibility of the specific material and the process. ये आपको फिगर आपको दिया हुआ है. Schematic of the design process with the design tools shown on the left and the materials and process selection on the shown on the right. मटेरियल सिलेक्शन आपको यहां पर दिखाया गया हुआ है, प्रोसेस सिलेक्शन आपको यहां पर दिखाया गया है, डिजाइन मेथड्स आपको यहां पर दिखाया गया है, डिजाइन टूल्स आपको यहां पर दिखाया गया है. ये आपको फाइनल प्रोडक्ट आपको बनना है. मार्केट नीड क्या है उसको आपको चेक करना है, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट लाना है, उसके बाद इमोडेट लाना है, उसके बाद डिटेल स्टडी करना है सभी का, और आपको आपके जो प्रोडक्ट हैं आपको प्रोडक्ट को शूट करना है अकॉर्डिंग टू द मार्केट नीड. With design tools shown on the left and material and process selection on the right, shows the refining method used to arrive at the best combination of the material and the manufacturing process. है ना, बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द मटेरियल एंड द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. ये आपको अडॉप्ट करना है कि आपका जो मटेरियल सबसे बेस्ट हो वर्ल्ड में और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो अडॉप्ट किया है आपने सबसे बेस्ट हो, तभी आप जो है वर्ल्ड में आप सर्वाइव कर पाएंगे. डिजाइन टूल्स में आपको यहां पर दिया हुआ है फंक्शन सिंथेसाइजर है, फंक्शन मॉडलर है, ये 3D सॉलिड मॉडलर है, सिमुलेशन है, ऑप्टिमाइजेशन मेथड है, कंपोनेंट मॉडलिंग FEM है, DFM है, DFA. ये सारे डिजाइन टूल्स आपको यहां पर दिए हुए हैं. ये सारे सॉफ्टवेयर के नाम है. फंक्शन सिंथेसाइजर, फंक्शन मॉडलर, 3D सॉलिड मॉडलर, ये सारे डिजाइन टूल हैं. सिमुलेशन, ऑप्टिमाइजेशन मेथड, कंपोनेंट मॉडलिंग, FEM, DFM, ये आपको डिजाइन टूल्स है. डिजाइन मेथड आपको
क्लियरिफाई द टास्क, डेवलप फंक्शन स्ट्रक्चर, आपको डेवलप द लेआउट, ऑप्टिमाइज द शेप्स, ऑप्टिमाइज द मैन्युफैक्चर। शेप्स को ऑप्टिमाइज कीजिए, लेआउट को डेवलप कीजिए, ऑप्टिमाइज मैन्युफैक्चर कीजिए। ये आपको यहां पर आपको दिखाता है। मटेरियल सिलेक्शन, ऑल मटेरियल्स, लो प्रिसीजन डाटा में लीजिए, सबसेट ऑफ मटेरियल हायर प्रिसीजन डाटा में लीजिए, एंड वन मटेरियल हाईएस्ट प्रिसीजन डाटा में लीजिए। प्रोसेस सिलेक्शन, ऑल प्रोसेस लो रिसोल्यूशन में लीजिए, सबसेट ऑफ द प्रोसेसेस हायर रिसोल्यूशन में लीजिए, वन प्रोसेस हायर रिसोल्यूशन में लीजिए। ये आपको प्रोडक्ट को, आपको स्कीमेटिक डिजाइन ये आपको प्रोवाइड किया है। आपको यही आपको मैन्युफैक्चर एंड असेंबली का, आपको ईज फॉर मैन्युफैक्चर एंड ईज फॉर असेंबली, यही आपको यहां पर आपको दिखाता है। ईच फॉर मैन्युफैक्चर कैसे होगा, ईच फॉर असेंबली कैसे होगा। इसमें आपको मटेरियल सिलेक्शन करना है ना, ऑल मटेरियल्स को चेक करना है, लो प्रिसीजन डाटा में चेक करना है, सबसेट ऑफ मटेरियल में चेक करना है, हाई प्रिसीजन डाटा में चेक करना है, वन मटेरियल को सिलेक्ट करना है हाईएस्ट प्रिसीजन डाटा में, प्रोसेस सिलेक्शन करना है, ऑल प्रोसेस को चेक करना है लो रिसोल्यूशन में, सबसेट ऑफ प्रोसेसेस हायर रिसोल्यूशन में, वन प्रोसेस को चेक करना है, अडॉप्ट करना है हायर रिसोल्यूशन में। ये आपको यहां पर, ये आपको मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली का ये आपको क्या कॉन्सेप्ट है, ये आपको यहां पर आपको दिया हुआ है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट of the manufacturing and assembly? This is the combination of for the design for manufacture and combination for the design for assembly. This is known as the design for manufacture and assembly. This is the design for manufacture and assembly. Design for manufacture means the design for each for manufacture for the collection of the parts that will form the product after assembly. ईज फॉर मैन्युफैक्चर, बनाने में जो सबसे आसान हो, उसका मतलब है डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चर, है ना। सिमिलरली डिजाइन फॉर असेंबली मींस द ईज फॉर असेंबली, मींस द डिजाइन ईज फॉर असेंबली। आपको असेंबली का आपको खाका इस तरह तैयार करना है कि आपको आसान हो, आपको असेंबली में आपको इसी को डिजाइन फॉर असेंबली बोलते हैं। So the design for manufacture and assembly is the combination of the both manufacture and assembly. This is the combination of the both manufacture and assembly. ये आपको manufacture and assembly का आपको concept है। This is the used for the 3B activity as the basis for the concurrent engineering study to provide the guidance to the design team in the simplifying the product structure. Product structure को simplify करना है। प्रोडक्ट स्ट्रक्चर का मतलब है कि एक आइटम अगर 100 आइटम से बनता है तो किस तरह से जो है उसका प्रोडक्ट स्ट्रक्चर का ट्री जाता है, उस सभी स्ट्रक्चर को टी को आपको सिंप्लीफाई करना है। रिड्यूस द मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली कॉस्ट, आपको कॉस्ट को जो है आपको रिड्यूस करना है, असेंबली कॉस्ट को रिड्यूस करना है, एंड टू क्वांटिफाई द इंप्रूवमेंट, और इंप्रूवमेंट को आपको बढ़ाना है ना। आपको असेंबली कॉस्ट को आपको रिड्यूस करना है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को रिड्यूस करना है और इंप्रूवमेंट को बढ़ाना है। यही मेन एक्टिविटी है आपको मैन्युफैक्चर एंड असेंबली का। एज ए बेंचमार्किंग टूल टू स्टडी द कंप्यूटर्स प्रोडक्ट्स, क्वांटिफाई द मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग डिफिकल्टी। जो आपको मैन्युफैक्चरिंग में आपको डिफिकल्टी आती है, असेंबली में आपको डिफिकल्टी आती है, उसको आपको क्वांटिफाई करना है। एज ए शुड cost tool to the help control cost and to help negotiate supplier contract. As a should cost tool to the जो cost है आपको supplier का contract का आपको reduce करना है। ये आपको बताया गया है, conceptual design है, ये आपको product design है। cost जो है आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है, cost incur कितना लगेगा, product use कितना होगा, ये यहाँ पर आपको टाइम ऑन परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्ट कमिटेड में आपको यहां पर आपको दिखाया गया है ना। आपको यहां पर एक्सप्लेन किया गया है प्रोडक्ट कॉस्ट कमिटमेंट ड्यूरिंग द फेज ऑफ द डिजाइन प्रोसेस। डिसीजन मेड इन द डिजाइन प्रोसेस cost very little in terms of the overall product cost but have a major effect on the cost of the product. You cannot compensate in the manufacturing for defect introduced in the design phase. This is the
case is there. The design process should be conducted so as to develop quality, cost competitive products in the shortest time possible. है ना? Develop the product for the quality, cost competitive product in the shortest possible time. आपको cost competitive products आपको बनाना है, तभी आपका सर्वाइवल आपका वर्ल्ड में आपका चलेगा. आप जो है कोई भी आइटम बनाइए, आपको कॉस्ट कंपिटिटिव बनाइए वर्ल्ड में, और फिर जो है वह जो कोई भी आइटम है उसको आप एक्सपोर्ट कीजिए. देखिए आपका ऑटोमेटिक जो है आपका जो है आइटम का कॉस्ट जो है वो आपको चलेगा. अगर आप कॉस्ट कंपिटिटिव प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, आपका जो है वो इसी वजह से इंडियन कंपनी आपका फेल्योर हो जाती है. इसके जो प्राइसेस होते हैं वो आपको कॉस्ट कंपिटिटिव नहीं होते हैं. उसके जो मटेरियल सिलेक्शन है वो आपका सही नहीं है. उसका जो प्रोसेस एडॉप्शन है आपका वो सही नहीं है. तो इंडियन कंपनी के लिए ये जरूरी है कि एक तो प्रोसेस सही अडॉप्ट करे. कौन सा प्रोसेस अडॉप्ट करना है? वो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मशीनरी को लेके आए जिससे जो है कॉस्ट को रिड्यूस करे, तो कॉस्ट कंपिटिटिव बनाए, तभी आपका जो है आपका चलेगा. तो दूसरा जो इंडियन एसएमई है वो करती क्या है, वो दूसरे कंट्री जाती है. जब जर्मनी चला गया, जर्मनी में जो आउटडेटेड मशीन है वो वहां से उठा के ले आया, वो फिर जो है आपको यहां पर लगा दिया और यहां इंडस्ट्री में लग गया. वो जर्मनी वाले तो आउटडेटेड थे इसीलिए उसने बेच दिया था. अब वो जो है कंपिटिटिव हो ही नहीं पाता है. तो आपको सिलेक्शन करना है इंडस्ट्री में, आपको जो मटेरियल का सिलेक्शन करना है आपको कंपिटिटिव बेसिस पे करना है. आपको जो प्रोसेस का जो सिलेक्शन करना है कंपिटिटिव बेसिस में करना है, जो कि आपको जो है आपको ईच फॉर मैन्युफैक्चर और ईच फॉर असेंबली में आपको बेस्ट प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड वो बनने में आ जाए. डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिजाइन आपको यहां पर आपको बताया गया है. ओरिजिनल डिजाइन, एडाप्टिव डिजाइन, री डिजाइन, वेरिएंट डिजाइन, सिलेक्शन डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन. ओरिजिनल डिजाइन का मतलब है इनोवेशन. इनोवेशन होना चाहिए. इनोवेशन होने के बाद ISO 901 का सर्टिफिकेट भी मिल जाता है. अगर कंपनी अपने प्रोडक्ट को खुद ही बनाती है और खुद ही डिजाइन करती है तो ISO 901 का भी सर्टिफिकेट मिल जाता है. और इनोवेटिव आइडिया रहने के बाद ही कोई प्रोडक्ट मार्केट में आपको सस्टेन करता है. तो एडाप्टिव डिजाइन का मतलब है नोवेल एप्लीकेशन. ये आपको एडाप्टिव डिजाइन है, नोवेल एप्लीकेशन कीजिए. किसी का डिजाइन आप एडॉप्ट कर लीजिए तो आपको ISO 902 मिलेगा, ISO 901 आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा. एडाप्टिव डिजाइन यही करती है. यहाँ की जो एसएमई है वो मारुति पे डिपेंडेंट है, होंडा पे डिपेंड है. तो मारुति कंपनी जो आपको ऑर्डर देगी वही जो है वो बनाती है. ये आपको एडाप्टिव डिजाइन को फॉलो करती है और इसी से जो है आपका ग्रोथ नहीं हो पाता है. अगर मारुति ने ऑर्डर दिया तो कंपनी चलेगी, अगर मारुति ने ऑर्डर नहीं दिया तो कंपनी नहीं चलेगी. तो ये आपको नोवेल एप्लीकेशन है फॉर रैपिड प्रोटोटाइपिंग. रीडिजाइन का मतलब है विदाउट एनी चेंज इन द कॉन्सेप्ट ऑफ द ओरिजिनल डिजाइन. आप उसको फिर से बना रहे हैं तो इसका मतलब है रीडिजाइन. वेरिएंट डिजाइन का मतलब है चेंजिंग सम ऑफ द डिजाइन पैरामीटर्स. आप उसको चेंज कर दिया तो आपको इसको वेरिएंट डिजाइन बोलते हैं. आपको सम ऑफ द डिजाइन पैरामीटर्स को चेंज कर दिया. सिलेक्शन डिजाइन, सेलेक्टिंग द कंपोनेंट्स विद द नीडेड परफॉर्मेंस, क्वालिटी एंड कॉस्ट फ्रॉम द कैटलॉग ऑफ द पोटेंशियल वेंडर, इसको सिलेक्शन डिजाइन बोलते हैं. इंडस्ट्रियल डिजाइन का मतलब है अपील ऑफ द प्रोडक्ट टू द ह्यूमन सेंसेस. इंडस्ट्रियल डिजाइन कोई भी प्रोडक्ट है आपको ह्यूमन सेंसेस में आपको अपील कीजिए, आपको इंडस्ट्रियल डिजाइन है. ये आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ द आपको डिजाइन आपको यहां पर आपको दिया गया है ना. ये आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिजाइन आपको यहां पर आपको दिया गया है. और दूसरा जो आपको कॉमन स्टेप्स जो यहां पर आपको बताया गया है इसी को अडॉप्ट करना है डिजाइन फॉर असेंबली के लिए. सजेशंस फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट. आप जो है उसका सजेशंस मांगिए, सिंप्लीफाई द प्रोडक्ट, और उसको डिजाइन में इंक्लूड कीजिए. सजेशंस फॉर मोर इकोनॉमिक मटेरियल एंड प्रोसेस. जितना ज्यादा आपको इकोनॉमिक मटेरियल लगेगा
उतना ज्यादा आप लगाइए। नए नए मटेरियल आ गए हैं, बहुत तरह के एलॉय आ गए हैं, हाइब्रिड मटेरियल आ गया है। आपको ये मटेरियल का सिलेक्शन मेन है। सिलेक्शन